Hi, I'm Madhuri Dixit. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. एक महिला को लाइफ में कोई गेम खेलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फेम तो वैसे ही उनके पास आ जाता है क्योंकि अच्छा काम करती है. Are you enjoying the love, माधुरी दीक्षित on Fame Game? क्या बोलेगी, जिंदगी भर तो मुझे लव ही मिला है यार, कौन सी नई बात है? नहीं, जितना प्यार मिले उतना कम है. So we are very excited that we are getting, we're trending in multiple countries and we're getting so much love, not only from India, from all over the world, globally, and messages on our phones and calls and some. Wow! पर ये बताओ, जो हमारी ऑन स्क्रीन मदर है अनामिका और हमारी ऑफ स्क्रीन माधुरी है, was she as loving and protective of you off the screen as well, Lakshmir? She's actually, actually she was more protective in general everywhere, not even just on set. Abhi promotions ke time pe bhi, har jagah. I mean, it's just the way she meets you. She's so warm and welcoming. I suddenly feel very comfortable. I think it's to do with she also has two very beautiful boys, and she just really knows how to be with people my age, and I think he's been so kind throughout. और मेरे को बड़ा ही generally बड़ा comfortable सा feel हुआ है, and I think so much of my performance उसका भी credit इसी चीज को जाना चाहिए. क्या बात है माधुरी, did you feel motherly instincts लक्ष्मीर के साथ off screen as well? He's a very sweet boy, very quiet, or he's someone, his personality is such that when you meet him, talk to him, you feel like protecting him. It's like isko protection ki zarurat hai, and so that feeling was very natural. It came very natural in all the scenes that we did, because sometimes he used to get carried away with his emotions and all, forget camera kidhar hai and all that. So I had to say, you have to perform for the camera. मतलब camera इतना अच्छा scene कर रहे हो, camera में दिखना चाहिए. So sometimes she had to hold me and bring me back because I'm such a gone case. She's like, please camera, come back into the frame. No, he's new and he's just started. So that is also one of the things that makes me very protective, because they're just starting out, and I was a newcomer once, and I know how it feels to be a newcomer. And when I see such bright kids and such good actors, then I want their best, to come through. लक्ष्मीर, याद रखना, जब तुम ग्रैंडफादर बन जाओगे आफ्टर 60-70 years, तब मैं शायद रहूंगा नहीं इंटरव्यू करने के लिए, तब तुम अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को बताओगे that you had worked with Madhuri Dixit. Do you realize that? हाँ सर, बिल्कुल. I realize that. But talking about newcomer, मैंने सुना कि जब माधुरी वाकई में न्यूकमर थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, आपको ये लग रहा था कि शायद आप एक्ट्रेस बन ही नहीं पाएंगे, you can't fit the definition of a heroine. Is that true, माधुरी? ये मुझे नहीं लगा था, ये लोगों को लग रहा था. That people used to say that, oh, she doesn't look like a heroine, because तभी, I was a very young girl who had come here, Maharashtrian roots, very, slight and, petite kind of a person. And people thought ki, everybody has like myths and imagination of how a heroine should be looking like or doing or whatever. And so, yes, there was a little bit which I had to face, but मेरी जो माँ है, या my mom, my parents, and she was very strong. My mom was very strong. She's like, don't worry, you do good work, you'll get recognition. You don't have to worry about anything else. Now that you've decided to do it to the best of your ability. And I always followed her advice, और उन्होंने कहा जब success मिलेगा, सब बाकी सब कुछ भूल जाएंगे. They'll say, oh, this is how it should be now, so you try to create that. और बस मैं वही करती रही. इनफैक्ट जितने भी दर्शक है, ये फेम मिलना बड़ा आसान काम नहीं होता, which माधुरी would know. मैंने सुना कि जब आप आई थी, आपकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, and then तेजाब happened, right? And then you became the माधुरी दीक्षित. तो बताओ, जब ये सारी फिल्में नहीं चल रही थी, उस वक्त आप डिसइल्यूजन थी, आपने बोला यार मैं छोड़ रही हूँ, मुझे एक्टर नहीं बनना, ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं छोड़ रही हूँ. मुझे काम मिलता गया, I kept getting work, लेकिन कभी कभी सक्सेस किसी को थोड़ा लेट मिलता है,
और वो मेरे साथ हुआ। काम तो मिल रहा था लेकिन जैसे एक बड़ी हिट मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिल रही थी। और तेजाब, लाइक यू सेड, हैपेंड, एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर तेजाब हैपेंड। लेकिन एक है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू बी रेडी टू वर्क वेरी हार्ड। फेम इज नॉट इजी, और जब मिलता है उसके बाद भी इट्स नॉट इजी टू मेंटेन इट, यू नो, एंड दैट्स व्हाट फेम गेम इज ऑल अबाउट, यू नो। पर आपको कभी, मैंने कभी सुना नहीं है, बट आई कुड बी रॉन्ग, ऐसे कभी हुआ है जब लोगों ने माधुरी दीक्षित को राइट ऑफ किया यार कि अब खत्म माधुरी इन द इंडस्ट्री, ऐसा हुआ आपके साथ कभी? नहीं, मुझे लगता है चढ़ाव उतार तो सबके लाइफ में आता है। जब आप, सूरज जब ऊपर होता है तो सब प्रशंसा करते हैं। when it's sometimes you don't get that kind of successes, then जी. they start saying अरे अभी तो इनका हो गया वगैरह। वो तो चलता रहेगा, it's part of life, and I think for me it's just noise, you know, background noise जैसे होता है वैसे। For me my work is very important, what I do is very important, और I just keep following that, that's it, I don't think about anything else. You know, एक कमेंट है इन द सीरीज जहां माधुरी लक्ष्मीर बोलती हैं कि यू नो तुम यंग एक्टर्स को पीआर की माने अहमियत मालूम है, तुम लोग पीआर से ही निकल जाते हो, तुम्हें ब्लेसिंग्स की क्या जरूरत है। लक्ष्मीर तुम नए हो, क्या तुमको भी लोग आके बोलते हैं यार लक्ष्मीर पीआर कर भाई, पीआर कर, ऐसे कर वैसे कर, और कभी कभार तुम्हें लगता है कि यार मैं पीआर क्यों करूं, आई वांट माय वर्क टू डू टॉकिंग, या फिर तुम कहते हो yes maybe PR is more important than work? क्या है तुम्हारा थॉट उसमें लक्ष्मीर? सर मेरे को भी पीआर का फुल फॉर्म पता चला अभी कुछ दिन पहले, मेरे को पता नहीं था। मेरे को इस सब से कोई मेरा लेना देना नहीं है। मेरा पीआर आप कर रहे हैं अभी मेरे से बात करके, और क्या चाहिए मुझे। और आई थिंक आपने जैसे बोला काम बहुत जरूरी है, तो काम इज द बिगेस्ट पीआर इन दैट सेंस, राइट। तो बस जब तक काम ठीक चलेगा होता रहेगा सब कुछ। वाह, पर अच्छा अभी मुझे भी बता दो पीआर का फुल फॉर्म होता क्या है? पब्लिक रिलेशंस। माय गॉड, सो गुड, यू नो आई एम हैप्पी। माने इसका फंडा स्ट्रेट है माधुरी की, हमको काम ही करना है, राइट? बिल्कुल, एंड इट्स द राइट फंडा, करेक्ट है, बिल्कुल सही जा रहे हो लक्ष्मीर भाई। तुमको ब्लेसिंग मिल गई भाई। बिगेस्ट पीआर में माधुरी दीक्षित की तारीफ कर रही है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी भी बिगेस्ट न्यूज चैनल को मैं कितने भी पैसे दे दूं, कुछ नहीं हो सकता उससे। ये दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। यू नो वी ऑलवेज बिलीव कि माधुरी दीक्षित जब कुछ करती होगी तो वन टेक आर्टिस्ट होगी, ये बिलीव होता है। जब आप कुछ डायलॉग बोलती हो ऐसे लगता है कि यार ये वाकई कैरेक्टर है, और माधुरी कैरेक्टर है, कैरेक्टर माधुरी है। इज इट ट्रू दैट इन योर जर्नी तम्मा के लिए आपको 40 टेक्स लेने पड़े? हाँ बिल्कुल, और ये कौन कहता है वन टेक, ये क्या लोगों ने कॉन्सेप्ट निकाला है, मेरे समझ में नहीं आता है ये वन टेक क्या होता है। बिकॉज आई थिंक यू हैव टू गेट द सुर राइट, यू हैव टू गेट द इमोशन राइट। तो जब तक वो नहीं आता तब तक, और everybody should be happy with the shot. I should be happy कि I have given my best, director should be happy कि जो हमने कैप्चर करना था हो गया। So finally takes पे there's nothing is senseless. आप क्या finally करते हैं और आप क्या बताते हैं, that's very important. Doesn't matter if it takes 40 takes like we did for तम्मा, क्योंकि उसमें एक शॉट था चेयर के साथ मूवमेंट थी, हम 4 लोग थे, और सरोजी वाज वेरी एडैमेंट कि एक शॉट में ही करना है, इसको ब्रेकअप नहीं करूंगी मैं, उस शॉट को कट नहीं करूंगी। एंड इट वाज लाइक अ नाइस 50 सेकंड का शॉट था वो पूरा जो म्यूजिकल पीस था। तो उसमें कभी किसी के हाथ से चेयर गिर जाती तो हमें एक और टेक करना पड़ता। वो हैट ग्लास में जो पैर पे गिरनी है वो किसी की रोल हो जाती थी तो हमें एक और टेक ना, कभी मैंने मिस्टेक कर ली, कभी पीछे जो डांसर्स थे दो उन्होंने एक ने मिस्टेक की, या संजय मेक सम मिस्टेक तो हमको फिर करना था। सो ऐसे करते करते कि चारों बिल्कुल परफेक्ट थे, वो 40 टेक्स हो गए। And you can imagine all our knees were dead by then. और हमको लग रहा था माधुरी दीक्षित ने ऐसे फूंक मारा और चेयर आ गया हाथ में और फिर चला गया। Lot of hard work behind everything. There's a lot of hard work. But tell me, talking about fans that come in your journey of fame as well, how can we not talk about MF Hussain साहब? उन्होंने हम आपके हैं कौन करीबन 100 बार देखी थी। In those days we were like, wow, sir बार-बार जाके देखते थे। Can you take us walk down memory lane on your moments with MF Hussain साहब, because he was totally admiring you all the time. Yes, I mean he was such a gentleman, such a nice person. और
इतने मतलब मैवरिक कह सकते हैं उन्हें, कि उनको कोई परवाह नहीं थी दूसरी चीजों की. ऑल ही थॉट वाज पेंटिंग, दैट्स ऑल. और जैसे हम लोग ऑब्सेस्ड होते हैं हमारे काम से, वैसे वो अपने काम से ऑब्सेस्ड थे. ही हैड विजिटेड मी इन डेनवर. बोले मैंने आपको हमेशा स्क्रीन पे देखा, आज मैं तुम्हें एक माँ के रूप में देखना चाहता हूँ. आई वांट टू विजिट यू, आई वांट टू सी हाउ यू नो आर लिविंग एंड कैसे. सो ही केम टू माय हाउस. तो मैंने कहा कि आप रिलैक्स कीजिए, I'll make you a cup of tea, just relax, don't do anything. बोले मुझे पनिशमेंट क्यों दे रही हो, क्योंकि मैं मोस्ट रिलैक्स होता है जब मैं पेंट करता हूँ, you know. So that was his passion for what he did. And बहुत ही अच्छे इंसान. क्या बात है. And we used to hear about those legendary stories all the time, you know, and that's the love you've earned not only from MF Hussain Saab but all of us. अगर हम भी अच्छे पेंटर होते माधुरी, तो मैं भी आपकी पेंटिंग कर देता. बट मैं अगर आपकी पेंटिंग करूंगा, आप वो पेंटिंग को फेंक दोगी, बोले क्या बनाया है तुमने. नहीं, anything made with love is beautiful. Lakshveer, in this entire journey with Madhuri Dixit, is there anything जो तुम कहना चाहते थे माधुरी से और तुम कह नहीं पाए क्योंकि तुम इंटिमिडेट हो गए या मेस्मराइज्ड हो गए? हाँ, आई थिंक मोमेंट्स होते हैं व्हेन यू आर ऑलवेज थिंकिंग. मतलब हमेशा क्या मानव कॉल के साथ हो रहा था कि उनको कुछ बताना है, वो बताए ना बताए वो सोच रहे हैं. तो मेरे साथ तो हल्का सा कभी कभी होता ही था कि सीन में वो अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं क्या पहले पूछ लूँ या कर लूँ. बट इससे पहले कुछ होता, आई मीन इतना नेचुरली वो चीजों को रिस्पॉन्ड करती थी और इतना स्पेस को कंफर्टेबल बना देती थी कि मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी कि अरे इसको अभी मैं कैसे बोलूँ या कैसे. आई कुड जस्ट इजीली go and do it. I remember एक scene था जब हमें hug करना है, तो I was really worried because I mean of course there's a lot of things going on and you don't know if I can do that or not. But the moment the scene started, it was in her breath, it was in her eyes, it was in the actions that I felt, and she was open to make that moment happen. And I think that is more important than anything else. कोई भी conversation करके कि मैं hug कर सकता हूँ और हाँ कर सकते हो, उससे बेटर ये है कि सीन में जो नेचुरली आए और दोनों एक्टर्स फील करें और वो हो जाए, वो ज्यादा स्पेशल होता है मेरे हिसाब से. तो आई थिंक ऐसी चीजें हो ही जा रही थी लगातार, तो कभी वो मौका ही नहीं हुआ. अच्छा माधुरी, यू वर्क विद सलमान, शाहरुख, अक्षय, सैफ. इन चारों में कौन है जो आपको हंसा हंसा कर पागल कर सकता है इन चारों में से? चारों ही है. चारों ही है. When they come to doing jokes and all, they all are like hilarious. Whether it's Shahrukh with his sense of humor, or Salman, or Saif, or even Akshay. I mean, बहुत mischief करते थे set पे, और they were always very entertaining. Tell me, if I had to tell you about Shahrukh, what is the first thought that comes to your mind about SRK? SRK, a very chivalrous guy, always making sure ki, ki, are you comfortable? Is everything okay? Taking care, basically, very caring person on the set. Very, very caring. Akshay, I think from the start, very driven. He wanted to prove himself, very, very driven. And of course, he was also a practical joker on the set. Sub dancers ke saath, he used to mingle with everyone and be very, very nice to everyone. Saif was, his one-liners are very funny. Kuch na kuch aise he used to say, we always used to burst out laughing. Salman, oh my God. I've done so many films with him. He's also very naughty and he's not a loud person, but very naughty. वो उनका जो है वो है, कुछ एक swag है उनका. Sometimes, last prashna, sometimes when you do films, some people do it for fame, some people do it for money, some people do it because love hai, for the craft. ये मुझे पूछना है क्योंकि बचपन से पूछना था, जब 1 2 3 गाना आया था, was your reaction saying आप मुझे गिनती क्यों करवा रहे हो? Well, when I first heard the song, मुझे ऐसा लगा, why am I saying 1 2 3, क्यों मैं बोल रही हूँ 1 2 3 4 5 ये क्या गाना हुआ? लेकिन जब चंद्रा जी told me that वो लड़की है, वो इंतजार कर रही है, वो दिन गिन रही है, एक दिन गिन रही है, इंतजार कर रही है कब उसका जो लवर है वो आएगा, उसको लेके जाएगा. She's in a very bad situation with her father and she just wants to be rescued.
and she's singing और वो गिन रही है दिन. So then everything made sense. Or of course when we actually Saroj ji choreographed it and we actually did the number, so it was, of course, then everybody loved it. But it's a very catchy number. और गाना बहुत पसंद आया था, लेकिन वो समझ में नहीं आया, गिनती समझ में नहीं आई. फिर जब समझाया तो तब पता चला कि okay, now the song kind of falls into what it's doing. जैसे हम गिन रहे थे दिन कि कब फेम गेम रिलीज होगी. वही मैं कह रहा हूं, फेम गेम गिनती में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब पे. Thank you, Madhuri Dixit. Thank you, Lakshveer. Such a pleasure talking to you. And I'm going to have a damn good day क्योंकि मैंने माधुरी से बात किया और मुझे छोटा भाई मिला like Lakshveer. Love you, brother. Love you, Madhuri. Thank you, Kanan.